ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ منسز کا آنا ایک صحت مند خاتون کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ساری عمر irregular menses کا مسئلہ رہتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں irregular menses کی تو اس کے مختلف سائن اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کے پیریڈز آتے ہیں لیکن وہ تھرو آؤٹ دا منتھ رہتے ہیں، یعنی اسپاٹنگ ان کو پورا مہینہ لگی رہتی ہے، اور وہ بعض اوقات جو نا ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، پرولونگ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جب ان کی پیریڈز ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اگلے ہفتے دوبارہ پیریڈز ان کے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں ان کو 2 یا 3 سائیکل آ سکتے ہیں، اور ان کنڈیشنز کو میڈیکلی مینوریجیا یا میٹرویجیا قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ کچھ خواتین کے پیریڈز اتنے پینفل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کو ڈسمینوریا کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس کنڈیشن کی بات کریں گے اس کا نام ہے ایمینوریا، اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں خواتین کے پیریڈ جو ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں، ڈیلیڈ ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین میں تو ایون یہ مہینوں یعنی پیریڈز ان کے نہیں آتے، 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے، اور کبھی تو 1 سال تک ان کے پیریڈ جو ہے نا اسکپ ہو جاتے ہیں، یعنی ریگولر نہیں ہوتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایمینوریا کی تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ایمینوریا کو کہا جاتا ہے پرائمری ایمینوریا، یعنی ایک بچی، ایک خاتون، ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو پہلے دن ہی سے اس کے پیریڈز شروع نہیں ہوتے، یعنی ان کے جو اوویرین فنکشن ہے پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا، اور ان کے جو منسٹرل سائیکلز ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو کبھی پیریڈز نہیں آئے، اور یہ ایک بہت زیادہ سیریس اور کنسرنڈ ہیلتھ ڈس آرڈر ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا جو ایمینوریا اس کو کہا جاتا ہے سیکنڈری ایمینوریا، یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ کے پہلے پیریڈز تو ریگولر تھے لیکن اب کسی وجہ سے وہ irregular ہونا شروع ہو گئے، اور انہی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی کنڈیشنز یا پاسبل کازز ہو سکتی ہیں کہ ایک خاتون جس کی زندگی ٹھیک ٹھاک تھی، پیریڈز ریگولر تھے، آن ٹائم شروع ہوئے جب وہ بالغ ہوئی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیریڈز جو ہے نا irregular ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی بیماری کو ٹھیک کریں اور اس کے پیچھے اس کاز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا علاج کیا جائے تو وہ بیماری مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے یا بہتر ہو سکتی ہے۔ نارملی ایسا دیکھا گیا کہ جن عورتوں کے پیریڈز ریگولر نہیں ہوتے وہ ڈاکٹرز کے پاس، جی پی کے پاس جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پر وہ ایچ آر ٹیز یا ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپیز یا ٹریٹمنٹس کی گولیاں دے دیتے ہیں۔ جب تک آپ وہ گولیاں کھاتی ہیں آپ کے پیریڈز آتے ہیں، جو ہی آپ نے وہ گولیاں بند کی دوبارہ سے وہ مسئلہ زیرو پر آ جاتا ہے، یعنی وہ مسئلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوا، صرف ان گولیوں کے کھانے سے ہر مہینے جو ہے نا انڈیوسنگ ہوتی ہے، یعنی وہ پیریڈز بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ آپ کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گولیاں ہیں وہ اس کا مکمل علاج نہیں ہے، وہ صرف آپ کو ایک ٹیمپرری جو نا پیلیشن یا ریلیف دے رہی ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس ہولسٹک ہیلتھ پریکٹس میں کچھ لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی بیماری کے پیچھے کوز کیا ہے، اور اس کوز کے بعد ان کو پیکولر سائن اینڈ سمٹمز کون سے بن رہے ہیں۔ اگر ہم اس کوز کو پراپر طریقے سے ایڈریس کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو مطلب ٹریٹ کریں تو وہ بیماری کافی حد تک ریورس ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمینوریا کی، کہ اگر آپ کے پیریڈز لیٹ ہیں، ڈیلیڈ ہیں، تو اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہیں، اور ان کو اگر آپ ٹھیک کریں گی تو آپ کا مسئلہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ irregular menses یا خاص کر menses جو نہیں آتے وہ ایک ریڈ سگنل ہے۔ اگر آج آپ اس کا علاج نہیں کریں گی تو آپ کو فیوچر میں جا کر بہت زیادہ پریشانیاں اور ہیلتھ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ بہت اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، آپ کو مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ انزائٹی اور ٹراما ہو سکتا ہے، ایموشنل کنسرنز ہو سکتے ہیں، اور خاص کر جب آپ کی خواہش ہو بچہ پیدا کرنے کے حوالے سے، تو جب تک آپ کے پیریڈز نہیں ہوں گے آپ یعنی کنسیو نہیں کر پائیں گے، پریگنینسی کا ٹھہرنا یا حمل کا ٹھہرنا انتہائی امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تو ریگولر پیریڈز آنا ایک خاتون کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص کر دنیا کی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے جنریشن در جنریشن، وہ تب ممکن ہے، بچے تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ کے مینسز ریگولر ہوں۔ تو جو خواتین بانجھ ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ انفرٹیلٹی کا اس کے پیچھے irregular menses ہی ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس مسئلے کو سیریسلی لیں گی تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا پراپر طریقے سے بڑھ سکیں گی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی خاتون کے اگر پیریڈز ریگولر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، یعنی ایک خاتون جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ اس کے اندر آئرن کی، خون کی کمی ہے، تو آبویسلی اس کے جو پیریڈز ہوں گے وہ لیٹ ہوں گے، ڈیلے ہوں گے، یا پراپر طریقے سے نہیں ہوں گے۔ اس کو ہم کہیں گے اسکینٹی پیریڈز، یا اسپیشلی اس کو ہم کہتے ہیں اسپاٹنگ صرف ہوتی ہے، ان کو صرف داغ لگتے ہیں لیکن ریگولر بلیڈنگ ان کی نہیں ہوتی۔ سیکنڈ مسئلہ ہو سکتا ہے اسٹریس کا، اگر آپ کسی وجہ سے مینٹل ٹراما میں ہیں، اگر آپ کو کوئی ایموشنل ٹرموائل ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، یا کسی طرح سے آپ کے ساتھ مینٹل ابیوز ہوا ہے، تو آپ کے پیریڈز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔
हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस तो डेफिनेटली एक इसका फैक्टर है ही है। साथ ही साथ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसी ख़वातीन में हमने देखा कि उनका जो मिड एरिया सेक्शन है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी जो ओबेसिटी होती है उनके हिप्स और थाइस के एरियाज़ में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो इसको भी आप कम करें, इस वजह से भी आपके पीरियड्स जो है ना मिस हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपका वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, दोनों कंडीशंस के साथ आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमेसिएटेड हैं, अगर आप में बहुत ज़्यादा यानी अंडर वेट हैं, तो उस वेट को आप मेंटेन करें, बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करें। अगर आप ओबीज़ हैं तो उसको कम करने की कोशिश करें। अगर आपका थायराइड फंक्शन ठीक नहीं है तो इसके साथ भी आपके ओवेरियन फंक्शन पे असरात होते हैं। तो थायराइड अगर आपका इम्बैलेंस है तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल देखा गया है ख़ासकर यंग बच्चियों में, वो है पीसीओएस या पीसीओडी का, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या डिसऑर्डर या डिजीज़ या सिंड्रोम कहा जाता है। तो अगर आपके अंदर ये बीमारी है, ये कंडीशन है जिसमें आपकी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज़ के अंदर, मल्टीपल सिस्ट्स होती हैं जो कि वाटर सैक्स किस्म के समझें पानी के बुलबुले उनमें बनते हैं, तब भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके साथ ना सिर्फ आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कम होते हैं, बल्कि आपके जो है ना वो मोटापा बढ़ने का प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको एक्नी का, स्किन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ख़वातीन में हर्सुटिज़म, जिसमें ये होता है कि उनके जिस्म के ऊपर कुछ एरियाज़ में अनवांटेड बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर, चिन के ऊपर, उनके चेस्ट पे, उनके शोल्डर्स पे। तो ये कंडीशन भी पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकती है। तो ये कुछ देखें कॉमन वजूहात थी। अगर आपके अंदर ये कंडीशन है, आयरन की कमी है, पीसीओएस का मसला है, थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है, या अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं, या आपके वज़न का मसला है, तो जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगी, आपके जो इरेगुलर पीरियड्स का मसला अगर एमिनोरिया का है वो ठीक नहीं होगा, तो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और हम यही करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉज को, और उसके मुताबिक जो दवाई क्लोज तरीन होती है, मैच करती है, वो हम देकर इलाज करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखना होता है कि डाइट में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएँ। देखिए, ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फ़ैट्स का इनटेक करना ज़रूरी है। अब फ़ैट्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फ़ैट्स और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स। सैचुरेटेड फ़ैट्स आपको नुकसान देंगे, उनको आप अवॉइड करें, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फ़ैट्स, जो कि हेल्थी फ़ैट्स जिनको कहा जाता है, उनका आप इस्तेमाल करें। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें एवोकाडोस हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स एंड सीड्स हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल करें, घी का आप इस्तेमाल करें, और जो फ़िश होती है ख़ासकर जिसमें मैकरेल है, सार्डीन्स हैं, इसके अलावा जो सामन फ़िश है, वो फैटी जो उसमें ओमेगा 3 है, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप में आयरन की कमी है तो आयरन को कमी दूर करने के लिए आप साग खाएँ, आप बीट्स का इस्तेमाल करें, आप जो है ना दालें खाएँ, और लीन मीट का इस्तेमाल करें। रेड मीट आप खाएँ लेकिन लीन मीट खाएँ। लीन मीट का मतलब है कि उसमें से जो गंदा फैट है या अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड फैट है उसको आप हटाएँ, और उसके बाद वो गोश्त इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ये होगा कि आपको प्रोटीन भी मिलेगी, और आपके अंदर अगर खून की कमी है तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आप प्रोटीन रिच फूड और आयरन रिच फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब प्रोटीन जो है ना आपको इवन एग्स में मिलती है, दालों में मिलती है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 3 ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं वाइटामिन्स की या मिनरल्स की, अगर आप में है तो तब भी आपके पीरियड्स मिसिंग होंगे। उसमें जो नंबर 1 है वो है मैग्नीशियम, इसके अलावा जिंक है, और बी वाइटामिन्स। तो इनका आप इस्तेमाल करें, और ये आपको मिलती हैं डार्क चॉकलेट में। बादाम आप ज़्यादा खाएँ, होल ग्रेन इस्तेमाल करें, और पम्पकिन सीड, जो कद्दू के जो बीज होते हैं उसके अंदर जिंक बहुत पाया जाता है, उसका आप इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ये होगा कि आपकी एवोल्यूशन बेहतर होगी, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बेहतर होगा, और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बेहतर हो सकते हैं। तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, हर इंसान को स्ट्रेस है, लेकिन आपने सीखना है कि आप स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं और अपने आप को कोप कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बिज़ी करें, डिस्ट्रैक्ट करें अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से, एक्टिविटीज़ करें, आर्ट करें, घूमने फिरने जाएँ, वॉक करें, अपने आप को यानी बिज़ी करें। तो स्ट्रेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं, और उससे आपके साथ यानी आपकी कंडीशन बेहतर होगी। अच्छा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कहते हैं एडाप्टोजेंस। अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो अब भी आपके जो इरेगुलर या डिलेड मेंसेस हैं वो बेहतर हो सकते हैं। उसमें जो नंबर 1 है जिससे आपकी स्ट्रेस भी बेहतर हो सकती है, उसका नाम है एश्वागेंडा। एश्वागेंडा के अलावा एक और प्लांट, उसका नाम है रोडियोला, और एक घर में जो हमें नॉर्मली मिल जाता है उसका नाम है होली बेसल, या जिसको कहते हैं तुलसी। तो इन 3 प्लांट्स को एडाप्टोजन कहा जाता है। इसके साथ आपको मेंटल पीस भी मिलता है, आपके हार्मोन्स भी बेहतर होते हैं। तो अपने किसी लोकल क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से मशवरा करने के बाद आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज़ आप बहुत ज़्यादा ना करें, उसको कम करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। वॉकिंग आप करें, स्विमिंग करें, हल्की-फुल्की ट्रेनिंग आप करें, लेकिन हैवी एक्सरसाइज़ आपने नहीं करनी। इंसानी सेहत के लिए नींद का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर रात की जो नींद है हमारे लिए मस्ट है। दिन की स्लीप आपको फ़ायदा नहीं देती। अगर आप पूरा दिन सोते रहते हैं तो वो फ़ायदा नहीं होता जो कि आपको रात की नींद से मिलता है, और रात की नींद की भी टाइमिंग है। आप कोशिश करें स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम आप कम करें, और कोशिश करें बेड में आपको 11 बजे होना चाहिए। रात 11 से लेकर सुबह 3 बजे की जो नींद होती है मस्ट है आपके लिए, और वो आपके मेडिकल प्रॉब्लम, आपके जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए, रीसेट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 7 से 8 घंटे नींद करती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मिनिमम आप कोशिश करें कि 11 और 3 का जो टाइम है वो आपके लिए मस्ट है, उसमें आप ज़रूर अपनी नींद को पूरा करें। इसके अलावा अगर आपका वज़न कम है, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करें। अगर आपको बीमारी है PCOS की, इसको बेहतर करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल के साथ ये होता है कि वार्मथ मिलती है, कंजेशन ख़त्म होती है। अब कैस्टर ऑयल का आप लोअर एब्डोमिनल एरिया में सर्कुलर जो ना तरीके से मसाज करें, तो उसके ये होगा, कंजेशन अगर वहाँ पर है, स्टेगनेशन बनी हुई है, बंदिश है, तो वो ठीक होगी। आप जो जो आपका कैस्टर ऑयल है उसमें 3 एसेंशियल ऑयल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स होंगे। उसमें नंबर 1 है रोज़मेरी, इसके अलावा क्लेरी सेज, और एक और ऑयल जिसको हम सिनेमन का एसेंशियल ऑयल कहते हैं। इनके साथ भी जो मेंसेस हैं इंड्यूस होते हैं, और आपके जो अंदर सर्कुलेशन बेहतर होती है, और अगर आपके अंदर किसी की तरह की ब्लॉकेज है तो वो बेहतर हो सकती है। तो ये 3 एसेंशियल ऑयल आप मिक्स करें कैस्टर ऑयल में, और उसको आप मसाज करें। अगर आप हमसे रब्ता करें, बर्मिंघम में मेरा क्लिनिक है, तो हम आपको रेडीमेड ये ऑयल प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको हम तरीका बताएंगे कि आपने कैसे करना है। तो आपका लोअर एब्डोमिनल सर्कुलर मूव में जो मसाज होगा, उसके साथ बहुत सारे आपके जो जेनिटल डिसऑर्डर्स हैं या रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखें, ख़ासकर वो लड़कियां जिनके पाँव ठंडे रहते हैं या कमर का निचला हिस्सा ठंडा रहता है, तो उस वजह से भी ब्लड का जो है ना जमना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर स्टेगनेशन आना शुरू हो जाती है। तो आप अपने पाँव को गर्म रखें, अपने कमर के निचले हिस्से को गर्म रखें, तो उसके साथ भी आपके साइकिल बेहतर हो सकते हैं। कोशिश करें जो प्रोसेस फूड होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स हैं, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। वो भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्रोसेस फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, फिज़ी ड्रिंक्स, और शुगर का इस्तेमाल कम से कम आप करेंगे तो आपकी कंडीशन बेहतर होगी। अगर आपको क्रेविंग होती है शुगर की, तो कोशिश करें नेचुरल जो प्लांट बेस्ड सुक्रोज होते हैं वो इस्तेमाल करें, या डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा माइक्रोवेव का इस्तेमाल जब से हुआ है, प्लास्टिक का इस्तेमाल जब से हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर टू प्लास्टिक या पेस्टिसाइड्स, उससे भी आप अपने आप को बेहतर करें। आखिर में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूँगा, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम होम्योपैथी से उनकी कंडीशन को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डिलेड पीरियड्स में लेडीज़ को हेल्प करती हैं, उसमें नंबर 1 है, उसका नाम है पल्सटीला। पल्सटीला के अलावा एक और मेडिसिन, इसका नाम है सीपिया, कैलकेरिया कार्प, नेट्रम्योर। और अगर आपके पीरियड्स काफ़ी मुद्दत से नहीं आ रहे, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने गुजर गए हैं, तो लैकेसिस एक मेडिसिन जिसके साथ आपको हेल्प होती है। लेकिन अगेन अगर आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से या होम्योपैथ से मशवरा करेंगे, तो आपकी कंडीशन, आपके सिम्टम्स, आपकी कोर्स को देखते हुए अगर आप वो दवाई इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ आपको बेहतर फ़ायदा होगा। क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन के फ़ायदे भी हैं, लेकिन बाज़ वक़्त अगर आप गलत दवाई लेते हैं, इवन हर्बल मेडिसिन गलत लेते हैं, तो उसके आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट, होम्योपैथ से रब्ता करें। अगर आप बर्मिंघम में हैं, या अगर आपको दुनिया के किसी हिस्से से भी टेली कंसल्टेशन की हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पर टेली कंसल्टेशन के ज़रिए कंसल्टेशन करें। मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से आप लें, इस्तेमाल करें, और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम, बल्कि किसी किस्म का भी मेडिकल प्रॉब्लम आप डिस्कस करने के बाद हेल्प कर सकते हैं। याद रखें, किसी भी बीमारी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, पैलिएशन नहीं करनी चाहिए। उसकी कॉजेज़ को, उसके साइन सिम्टम्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप इलाज करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी लॉन्ग टर्म में वेलनेस आपको होगी। कभी भी शॉर्ट टर्म रिलीफ न देखें, कभी भी किसी बीमारी के सिग्नल्स को, साइंस को इग्नोर ना करें, क्योंकि वही बीमारियां फिर बढ़ जाती हैं, और फिर बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दवाई लेने से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं, जो कि मुमकिन नहीं होती। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया, और उम्मीद है मैंने आपके साथ कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में शेयर की। और अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 07960299093, और मेरा क्लिनिक है बर्मिंघम UK में, और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, यानी मैं हर्बल सप्लीमेंट्स, अरोमाथेरेपी, होम्योपैथी, न्यूट्रिशन और कम्प्लीमेंट्री रेमेडी से अपने मरीज़ों का इलाज करता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।